بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 13 مارچ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور وہ ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے غزہ کو مکمل طور پر ایتھنک کلینسنگ کا شکار بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہاں سے تمام تر جو وہاں مسلمان ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کو نکالنے کا پلان کیا گیا تھا، وہ سب کچھ چکنا چور ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ جو مرضی پلان بنا لیں، ایک پلان اس پاک ذات کا ہوتا ہے، اس نے کن کہنا ہوتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جیسے غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر اردن اور مصر منتقل کرنے کا پلان بنایا گیا، پھر اس نے اس شہر کو دنیا کے ایڈوانس ترین شہروں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انپریڈکٹیبل شخصیت ہے، اب جناب والا جو ایک آئرش وزیر اعظم کے ساتھ جو باقاعدہ طور پر اس کی ملاقات تھی، میٹنگ تھی، وہاں پر سوال و جواب کا سیشن تھا، جس نے پورے کا پورا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا، اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان یہاں پر تبدیل ہو گیا۔ اور کیونکہ جو عرب لیڈرز جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، ان کی ٹرمپ کو کنونس کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور غزہ آزادی کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب جو ٹرمپ ہے وہ مان گیا، باقاعدہ طور پر اس کی جانب سے آئرش وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی گئی، اس میں اس نے پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور باقاعدہ غزہ کے لوگوں کو غزہ کے اندر رہنے کے حوالے سے اس نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس نے کہا کہ ان کو وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، جس کے بعد جو اس وقت نیتن یاہو ہے وہ بھرپور سیخ پا ہے، اور کیونکہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں، الیگیشنز ہیں، کرپشن کیسز ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے، اور اس کے اپنے لوگ اس کو باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ مجرم تصور کر رہے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو کیسز ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو طول دینے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے صرف اور صرف یہ جنگ چاہتا ہے۔ اس وجہ سے جو اپوزیشن ہے، جو دیگر عوام ہے، وہ بھرپور طریقے سے اپنے وزیر اعظم کے خلاف کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور عرب لیڈر کی جانب سے جو ملاقاتیں تھیں، جو پوری پلاننگ تھی، جو غزہ پلان تھا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کیسے یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر ایران کے حوالے سے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی نیوکلیر پلان کو لے کر باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی، اور اس حوالے سے اب جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کا سرپرائز جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور بیجنگ کے اندر ایک اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے، نیوکلیر میٹنگ ہے، جس میں رشیا، چائنا اور ایران جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آن پیج ہیں، اور ان کی جانب سے پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور جس طرح سے امریکہ چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر نہ بنے، جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کی جانب سے 2 ٹوک انداز میں وارن کیا گیا، انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے نیوکلیر بنانے کو لے کر، ہم نے نہیں بنایا، یہ ہماری اپنے ویل ہے، کیونکہ ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ جو اس وقت سینیریو، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں لگا کہ ہمارے لیے یہ ناگزیر ہے تو اس وقت ہم بنا کے دکھائیں گے۔ تو اس وقت یہ یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ جو ملاقات ہے اس نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا تھا، اور ایران جو ہے وہ بیجنگ اور پھر جو رشیا ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ کیسے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو سینیریو ہے وہ پورے کا پورا تبدیل ہو چکا ہے۔ جیسے غزہ کو مکمل طور پر وائپ آؤٹ کرنا، ایتھنک کلینسنگ، غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، پھر ادھر نیا ایک شہر آباد کرنا، یہ پوری کی پوری پلاننگ تھی۔ لیکن ایک پلان آپ کا ہوتا ہے، ایک اس پاک ذات کا ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب جس طریقے سے یہاں پر ان کو نکالنے کا پلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، اور جس طرح سے اس نے مصر اردن میں منتقل کرنے کا پلان، اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ دھمکیاں دیں، حماس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، پھر اس نے یہاں تک کہا کہ 12 بجے تک جو ہے وہ جتنے قیدی ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن جب آگے سے کوئی ریسپانس نہیں آیا، تو اب جبکہ گزشتہ رات کو جو آئرش وزیر اعظم اور پھر دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے، پریس کانفرنس چل رہی تھی، وہاں پر ایک صحافی کی جانب سے اس سے سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے، اس کے اوپر آئرش وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ ابھی آئرش وزیر اعظم بولا نہیں تھا کہ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ غزہ کے لوگوں کو کوئی بھی وہاں سے ایکسپیل نہیں کر سکتا، نو ون ایکسپیلنگ غزن پیپلز فرام غزہ، مطلب جو غزہ کے لوگوں کو
कोई भी वहां से नहीं निकाल सकता। और ये बेसिकली ट्रंप का 180 डिग्री का चेंज बयान था, क्योंकि पहले वो लोगों को निकालने के लिए मिस्र के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, उर्दन के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, यहां तक कि जो उर्दन का किंग है उसने जिस तरह से इसके साथ मुलाकात हुई थी और किसी से डका छुपा नहीं था कि कैसे यहां पर जो है वो मंजरनामा तब्दील हुआ और वो पूरी दुनिया के अंदर उर्दन को बड़ी सुनना पड़ी। लेकिन यहां अब अचानक से उसका प्लान तब्दील हुआ, जिसने जो इजराइल है वो उसकी बाकायदा तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म की जो है वो यूं कह लें कि चीखें निकलवा के रख दी कि वो जो प्लान कर रहे थे, क्योंकि उसको तो जबरदस्ती जो है वो जंग बंदी की तरफ लेकर जाया गया है। और वो अमेरिका क्योंकि जब भी चाहता है वो डायरेक्ट टॉक्स में आ जाता है, जिस तरह से आपने देखा कि रशिया और अमेरिका जो है वो डायरेक्ट टॉक्स के अंदर है। और फिर हमने देखा कि वहां ना सिर्फ ये बल्कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद नहीं था, उन्होंने डील का फैसला कर लिया। अब इसी तरह से हमास के साथ खुफिया डायरेक्ट मुलाकातें भी हो रही हैं और टॉक्स भी चल रही हैं और वो वहां से कैदियों को रिहा करवाने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन अब इससे एक और बड़ी खबर, ये जो अरब लीडर्स ने अहम तरीन सिनेरियो बनाया है और यहाँ पर अरब लीडर्स की मुलाकातें भी हुई हैं, क्योंकि अभी रियाज के अंदर बाकायदा तौर पर जो कतर है, यूएई है, रियाज है, सऊदी अरेबिया और उसके बाद जनाब वाला दूसरी जानिब मिस्र है, उर्दन है, इनके वज़ारे खारजा वहां पर इकट्ठे हुए और बेसिकली मिडिल ईस्ट के दौरे पर स्टीव विटकॉफ जो है वो भी मौजूद है। और स्टीव विटकॉफ के दौरे पर वहां ये सब इकट्ठे हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि हम गजा को जो दोबारा से रीबिल्ड करेंगे और इसके लिए जो हमने प्लान दिया उसके ऊपर अमल दरामद के लिए हमें टाइम दिया जाए, 5 साल का वक्त, और हम इसको दोबारा से तामीर करेंगे। लेकिन हाँ, यहां से गजा के लोगों को निकाला नहीं जाएगा। ये एक पूरी का पूरा प्लान जो पहले मिस्र जो है वो प्रपोज कर चुका है, उसको लेकर जो स्टीव विटकॉफ है उसकी जानिब से एंडोर्समेंट भी दे दी गई और उन्होंने कहा जी ठीक है, वो मान गए। जिसके बाद नेतन्याहू भरपूर गमो गुस्से का शिकार है और उसकी जानिब से जो कहा जा रहा है कि वो बाकायदा पब्लिक के अंदर तो ट्रंप के खिलाफ बयान नहीं दे पा रहा, लेकिन जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भरपूर तरीके से ब्रंटली वो ट्रंप के खिलाफ जो है वो बातें भी करता है। लेकिन अब पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। अभी जिस तरीके से नेतन्याहू है वो शिकंजे में भी आ चुका है। गजा की जो मैंने कहा ना कि गजा आज़ादी के ऊपर मोहर तस्दीक इसी वजह से कि जो अमेरिका ऑफ कोर्स जिस तरह से वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अचानक से अगर वो पीछे से हट जाता है तो पूरी की पूरी ये इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अब जनाब वाला जो खबर ये है कि नेतन्याहू लूसेस टेम्पर इन कोर्ट, स्लैम्स टेबल, जज रिब्यूक्स हिम। मतलब उसने जब अदालत में वो पेश हुआ अपने केसेस को लेकर तो वहां पर उसने ऐसे गुस्से से टेबल के ऊपर हाथ मारा। जब टेबल के ऊपर हाथ मारा और आवाज बुलंद की तो यहां पर जज की जानिब से भरपूर तरीके से उसको आड़े हाथों लिया गया। और क्योंकि नेतन्याहू ने वहां पर फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हुए उसने कहा था कि मुझे मजीद टाइम चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे मारा, उसने कहा कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए और ये मुझे इन इल्ज़ाम को डिफेंड करने के लिए मजीद टाइम चाहिए। जिसके ऊपर जो वहां पर खातून जज थी जिसका नाम था जो रेविका फेल्डमैन, उसकी जानिब से कहा गया कि अब उसको आवाज नीचे करने का और झड़क दिया गया और आवाज नीचे करने का हुक्म दिया गया। तो ये इसकी पूरी की पूरी कहानी है, कैसे इनको आड़े हाथों जो है वो लिया जा रहा है। और अभी इसके ऊपर तकरीबन 300 जो अलेज्ड अटेम्प्ट्स हैं जो कि इसकी जानिब से जो पूरे के पूरे केसेस को दबाने के लिए और मंजरनामे को तब्दील करने के लिए, अपने हक में बनाने के लिए ये सारे का सारा सीन क्रिएट किया गया। लेकिन अब जो अहम तरीन सिचुएशन है, जो अपोजिशन लीडर है इसराइल का, जो कि उसने कहा कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी लूज ट्वाइस, हम 2 बार जिसमें हार चुके हैं। द किडनैप्ड सोल्जर्स आर नॉट रिटर्निंग, हमारे जो फौजी हैं, जो अगवा हैं, वो रिटर्न नहीं हुए। एंड हमास इज गेटिंग अ सीज फायर फॉर फ्री, मतलब उसने कहा कि ये जो सीज फायर है वो फ्री में वो लेते जा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अभी जनाब वाला मजीद उसने ये कहा कि स्टॉपिंग द वॉर हैज अ पॉलिटिकल प्राइस, जो स्टॉप करना जंग को ये पॉलिटिकल प्राइस है। एंड नेतन्याहू डजंट वांट टू पे इट, मतलब उसको पता है कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल भी ये पे नहीं करना चाहता, उसकी हुकूमत जा सकती है, इस वजह से वो ये सारे का सारा मंजरनामा बना रहा है। लेकिन अब ये एक तरफ तो सिनेरियो था, दूसरी तरफ जो ईरानी सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खamenei, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम एटम बम बनाना चाहें अमेरिका हमें नहीं रोक सकता, और अगर हमने एटम बम अभी तक नहीं बनाया तो इसकी वजह हम खुद हैं और जो कि नहीं बनाना चाहते, जो कि शरन जायज नहीं समझते। वरना अगर बनाने की जरूरत पेश आई तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ जो
मुज़ाकरात पर आमादगी का ऐलान है। इस हवाले से आयतुल्लाह अली खamenei की जानिब से कहा गया कि ये जो राय आमा को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से क्यों इनकार करता है? क्योंकि ये वही सदर था जिसने दस्तखतशुदा एटमी मुआहदे को फाड़ दिया। तो हम इसके साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं जबकि हम जानते हैं कि वो अपने वादों को पूरा नहीं करता। अगर मुज़ाकरात का मकसद पाबंदियां हटाना है तो इस अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत करने से वो हल नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। इस अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत पाबंदियों के खात्मे का बायस नहीं बनेगी, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी और दबाव में मजीद इजाफा होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम एटमी हथियार बनाना चाहते तो अमेरिका हमें नहीं रोक सकता था। हकीकत यह है कि हमारे पास जोहरी हथियार नहीं है और ना ही इसकी तलाश है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं चाहते। अमेरिका ने ईरान पर फौजी हमले की धमकी दी। जंग शुरू करना या धचका लगाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो जवाब हासिल किए बगैर एक तरफ से किया जा सकता है। ईरान जवाबी हमला करने की सलाहियत रखता है और वो यकीनन इस तरह का धचका लगाएगा कि पूरी दुनिया जो है वो देखेगी। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, क्योंकि इस वक्त जो अहम तरीन मीटिंग बीजिंग के अंदर हो रही है, वहां जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डिस्कस किया जा रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई। अब जनाब वाला जो रशियन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं और जो CIA है उसके डायरेक्टर बाकायदा उनकी मुलाकात फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने इस टेंशन को दो ममालिक के दरमियान जो टेंशन है उसको ख़त्म करने के हवाले से बात की। लेकिन रशिया, सरगई लारोफ जो है उसने क्या कहा? रशिया डिस्कस द स्टेटस ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर अग्रीमेंट विद द US and is continuing contacts on this issue with Europe। मतलब उसने पूरी का पूरा मंजरनामे को कहा कि वो इसके ऊपर अग्रीमेंट जो किया हुआ है उसके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं, मामला को देख भी रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वॉशिंगटन सीक्स टू लिंक द न्यू न्यूक्लियर एग्रीमेंट टू ईरान सपोर्ट फॉर ग्रुप्स इन द मिडल ईस्ट एंड दिस इज डूम टू फेल। मतलब उन्होंने कहा कि ये, सरगई लारोफ ने कहा कि जो ईरान के हवाले से जो अग्रीमेंट है वो न्यूक्लियर को लेकर एक नया जो एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और फिर जो मिडल ईस्ट के अंदर सपोर्टिव हो, ये एक फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इस वक्त जो उनकी मीटिंग जो हो रही हैं, मुलाकातें जो हो रही हैं, उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा मंजरनामा यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है और वहाँ जो अहम तरीन मुलाकात है, चाइना भरपूर तरीके से उसके सपोर्टिव खड़ा है। ईरानी नेवी कमांडर टू अल जजीरा, आवर हैंड इज एक्सटेंडेड to the countries of the region and we are ready to offer them our expertise। मतलब उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज वहां पर देने का भी ऐलान किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा जो इस वक्त the region is no longer what is it once was and it countries are capable of ensuring their own security। मतलब उन्होंने कहा कि अभी जो रीजन है ये वो वाला नहीं कि जो पहले था। अब तमाम तर कंट्रीज अपनी हिफाजत खुद करने के काबिल है। इस वजह से कोई भी इसको गलती से भी अपने जो इसको हल्के से ना ले। लेकिन यहाँ जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया, चाइनीज रशियन ईरानियन टॉक्स ऑन द ईरान फाइल विल बी हेल्ड ऑन बीजिंग ऑन March 14। जो 14 मार्च को ये जो मीटिंग्स हैं वो होने जा रही हैं, जिसको लेकर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने कहा कि रशिया एंड चाइना टू मीट इन बीजिंग ऑन फ्राइडे टू डिस्कस द न्यूक्लियर इशू। मतलब जो न्यूक्लियर इशू है उसको लेकर वो उसके साथ बातचीत भी करेंगे। ये पूरे का पूरा मंजरनामा इस तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, क्योंकि देखें चाइना जो है वो चाइना से कट ऑफ करने के लिए, ईरान को दूर करने के लिए ये प्लानिंग हो रही है और चाइना खुलकर ईरान का साथ जो है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।